Okay, linear equation with two variables. So, what is linear equation with one variable? The equation of a type in which there is only one variable such that that variable has a highest degree of x to the power 1 of 1, or whatever the variable is, it has the highest degree as 1. In such case, we say that the equation is a linear equation with one variable. Although, why? Because there was only one variable. Now, if I ask you what type of equation you have when you have x and y with you, as in जो तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, this you can say that okay, here x is my one variable and here y is my another second variable. So, and although the power of x is 1 and power of y is also 1, it means that definitely whatever equation it is of a linear type. It is of a linear type. And इसमें एक और ये बात ये आ गई है कि now not just only x is our variable but y is also our variable. And since in a equation where you come across such kind of situation in which there are two variables and the highest degree in that particular equation is 1, in such situations we call it as linear equation with two variable. Linear equation with two variable in which a is not equal to 0 and b is not equal to 0. But obviously अगर मेरे को दो वेरिएबल के फॉर्म में बोलना है तो दिस एंड दिस शुड नॉट बी 0, एल्स अगर कोई भी एक 0 हो गया तो it will convert it in the form of one variable. It will convert it in form of one variable. So we should be careful while reading out or while observing things that whatever we have is in two variable or one variable. Okay. So equation of a type ax plus by plus c, where c is constant, is equal to 0, such that a is not equal to 0 and b is not equal to 0, where a, b, c are constants or real numbers, you can say. X and y are variables. Then such type of equations are known as linear equation with two variables. Now, important बात ये नहीं है कि linear equation two variable होता कैसा है. Important बात ये है कि how do you find the answer for this x and answer for this y. It was simple for us to calculate x plus 3x equal to 21x plus 34. It was very simple for us to calculate this kind of equation because all the terms in this equation were in the form of one variable only. And we just did what? अपन ने क्या किया? अपन ने सिर्फ ये टर्म 21 को यहां पे लेकर आ गए in such a way that लेफ्ट हैंड साइड में x की टर्म्स आ गई, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट की टर्म आ गई, एंड वी सॉल्व, वी गॉट द आंसर, वी गॉट द सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. यहां पे एक ही इक्वेशन था और इसी इक्वेशन पे वर्कआउट किया गया था. वन इक्वेशन एंड वन एंड ओनली वन इक्वेशन जिसपे वर्कआउट किया गया था. Now the point is we need to study linear equation with two variable. इसका मतलब there are two unknown variables that we need to find out, and when there are two unknown variables to find out, you need two equations. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है that if you want to find x plus y equal to 2, let's just say x plus y is equal to 2. अब मेरे को बताओ what is the value of x and what is the value of y. There are lot of values of x and lot of values of y. As in x can be 0, 1, 2, -1, -2, -3, whatever it has to be. Y on the other hand can be 0, 1, 2, -1, -3 or even 4, whatever it has to be. How would you know कि exactly कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू, exactly कितनी नहीं, exactly क्या वैल्यू है. क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब x और y की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी. इट इज यूनिक. मतलब क्या? द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हैज टू बी यूनिक. हैज टू बी यूनिक का मतलब क्या हो गया कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज, इट विल बी वन यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड वॉट एवर द वैल्यू ऑफ y इज विल बी यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी. अगर समझो x मेरा 0 है तो इट इज पॉसिबल दैट y कैन बी 2. अगर मेरा x 2 है तो y विल बी 0.
बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि यहां पे भी x जीरो हो गया और y जीरो हो गया, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू सॉल्व सच काइंड ऑफ सिस्टम्स. हाउ डू यू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल. मेरे को इतना पता है लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट रहेगा. इस क्वेश्चन को भी एक ही रूट रहेंगे, मतलब एक ही रूट रहेगा, यानी क्या x विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, y विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, वेदर और नॉट दे कैन बी इक्वल. कैसे, यहां पे अगर x इक्वल टू 1 पुटअप करो और y इक्वल टू 1 पुटअप करो तो I get 2. So in such case, yes, it's okay that they are equal, but it does not mean that they should be equal and they will always be equal, है ना. And it should not be okay with us considering that x can have more than one root. It is not possible because ये एक linear equation है and only one root can be found out. ओके, तब इसको सॉल्यूशन, इसका मतलब ये रूट फाइंड आउट करने का सिस्टम क्या है. ये जो सिस्टम है टू वेरिएबल्स का, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा. मेरे को एक बात बताओ, जब सिंगल वेरिएबल था तब मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, एक ही इक्वेशन चाहिए था, उसमें अपन वर्कआउट कर रहे थे. अब यहाँ पे कितने अननोन वेरिएबल है, 2 अननोन वेरिएबल है, तो कितने सिस्टम लगेंगे, कितने इक्वेशन लगेंगे, 2 इक्वेशन लगेंगे. कितने इक्वेशन लगेंगे, 2. क्यों, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी जस्ट टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन कि भाई इसका x का आंसर क्या रहेगा, y का आंसर क्या रहेगा. क्यों, क्योंकि x कैन होल्ड एनी वैल्यू एंड y कैन होल्ड एनी वैल्यू. आई वांट स्पेसिफिकली वन वैल्यू. ऐसे समय पे व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल और व्हाटएवर इक्वेशन इट इज, if it has more than one variable in a particular equation, then you will require that number of equations, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है. एज इन अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो आई विल रिक्वायर अनदर इक्वेशन. लेट्स जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, मेरे पास में ये 2 इक्वेशन है एंड आई नीड टू सॉल्व नाउ. आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन सो दैट टू फाइंड x एंड y. अब मेरे को पॉसिबल है यहां पे ये बताना कि exactly what is the value of x for these 2 equation and what is the value of y for these 2 equation. वो आगे अपना किस्सा है, अभी कैसे सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ पे तो समझ लेते हैं कि भाई क्या मतलब ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है तो होती कैसे चीज है उसमें. एंड यूजिंग सम मेथड, एक मेथड है जो सबको पता ही है, ऐसा कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, बट वो मेथड के थ्रू वी आर एबल टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन ऑफ दिस, और इसके भरोसे पे, किसी एक के भरोसे पे वी कैन फाइंड द अनदर वन. देन एट अ टाइम with one equation you cannot find both the variables. In order to find the 2 variables to 2 unknown variables, you will require 2 equations. In our example यहाँ पे ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1. I will rewrite equation 1 and our equation 2 is x minus y equal to 1. ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया और ये लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल हो गया है. तो अब आपको पता है इसके आप बोलोगे कि भाई इसके तो 2 इक्वेशन है तो रूट तो 2 होने चाहिए थे. नहीं, रूट 2 नहीं होंगे. रूट 2 तब होंगे जब डिग्री 2 हो जाएगी, और डिग्री तो 2 है नहीं यहां पे. डिग्री कितनी है, एक ही है. एक सिस्टम में ऐसे एक क्वेश्चन में 3 या 4 या 5 भी लीनियर इक्वेशन रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को. रूट एक ही रहेंगे, x की वैल्यू एक ही रहेगी. आप 5 इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू एक ही मिलनी है. 5 इक्वेशंस मतलब 5 वेरिएबल रहेंगे उसमें. 3 इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल रहेंगे उसमें. 4 इक्वेशन मतलब 4 वेरिएबल रहेंगे अननोन फाइंड आउट करने के लिए. और ये तो अपने नेचर में भी बताया गया. अपने नेचर में भी आप देखोगे कोई चीज, अगर आपको 2 अननोन चीज फाइंड आउट करनी होती है तो आपको कोई 2 चीज लगती है उससे रिलेटेड ताकि आप उसको फाइंड आउट कर सको. आपको अगर एक ही चीज फाइंड आउट करनी है तो आपको एक ही चीज लगेगी उससे रिलेटेड फाइंड आउट करने में. पर आपको कोई 2 या 3 या 4 कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो आपको 3 या 4 उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको लगेगी उनको फाइंड आउट करने के लिए. जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं x ये x से रिलेटेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं y ये y से रिलेटेड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट से रिलेटेड हो जाएगा. And that is why we are able to find out 2 unknown variable using 2 equations. And what is that method? That we will discuss it on the next video. वो अपना next session का part है. Now linear equation with 2 variable, एक ऐसा equation जिसमें 2 unknown variable आ जाए,
दो अननोन वेरिएबल आ जाए, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ बोथ द वेरिएबल इज 1. Highest degree or highest power of both the variables is 1, not greater than 1. So such equations are known as linear equation with two variable. Okay, so yes, that's it from me for today's session. In next session we will understand how do we solve this kind of equations. So that's it from me. Thank you.